السلام علیکم میرے سب لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول ماہ دوران کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں سجل سعید، اور یہ اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ بائک کی سیٹ سے ٹیک لگائے پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑا نظریں سامنے گیٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ ایک نظر موبائل کی جانب دیکھا جس کی اسکرین کسی بھی میسج سے خالی تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ بائک پر سوار ہونے ہی والا تھا جب گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً مڑا تھا۔ چہرے پر یک لخت ابھرنے والی رونق سامنے نفوس کو دیکھتے مان پڑ گئی۔ چند قدم اٹھاتا وہ گیٹ واپس بند کرتی ماہ دورہ کی جانب بڑھا۔ ماہ دورہ، کیسی ہو؟ آواز پر ماں نے مڑ کر دیکھا۔ ڈان کو دیکھتے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اچھی ہوں، تم کیسے ہو؟ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ کندھے اچکا کر جواب دینے پر ماں سر ہلائے مسکرا دی۔ ڈان نے ایک نظر پیچھے بند گیٹ پر ڈالی، پھر ماں کو دیکھا جو سوالیہ انداز میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نورے گھر پر ہے؟ نورے اپنے دوستوں کی طرف ہے۔ ماں کے جواب پر ڈان کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے۔ دوستوں کے ساتھ؟ سوال پر ماں نے سر از بات میلایا۔ وہ گروپ اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں کی طرف گئی تھی، جس کے بعد ان کا ڈنر کا پلان بن گیا۔ کب تک آئے گی کچھ بتایا اس نے؟ میسج کیا تھا کہ کچھ دیر ہو جائے گی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی کام تھا نورے سے؟ ڈان نے کلائی میں بندی گھڑی سامنے کی جو 8:30 بجا رہے تھے۔ اس نے نورے کو 8 بجے کا وقت دیا تھا، تو کیا وہ بھول گئی یا وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی؟ دل میں چبھن سی ہوئی تھی جسے یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ نہیں، کوئی کام نہیں، بس ایسے ہی۔ ماں نے چند سیکنڈ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر سر ہلائے اپنے قدم آگے سڑک کی جانب بڑھائے۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ سوال پر وہ رک کر مڑی۔ زیادہ دور نہیں، بس یہیں روڈ پر ہلکی سی واک کے لیے۔ ڈان سر ہلائے واپس اپنی بائک کی جانب بڑھا۔ ماں کو اس کا سنجیدہ انداز دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ ڈان اور سنجیدگی دو بہت مختلف چیزیں تھیں۔ کوئی بات ہے ڈان؟ اگر نورے سے کوئی کام تھا تو مجھے بتاؤ، شاید میں مدد کر سکوں۔ نہیں، کوئی کام نہیں، میں خود اس سے مل لوں گا۔ ہیلمٹ سر پر رکھتا وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ میں رائڈ پر جا رہا ہوں، تم چاہو تو جوائن کر سکتے ہو۔ بائک سٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھا تھا۔ ماں نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ میں صرف واک کروں گی اور واپس گھر آ جاؤں گی۔ اس کے جواب پر کندھے اچکا کر ڈان نے بائک سٹارٹ کی۔ انجن سٹارٹ ہونے کی زوردار آواز پر ماہ دورہ نے جھرجھری لی تھی۔ جانے یہ سب بائک چلا کیسے لیتے تھے؟ اس سے تو آواز بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک انجن کی آواز میں مزید ایک اور انجن کی آواز کا اضافہ ہوا تھا۔ بیک وقت ڈان اور ماں نے سلطان مینشن کی جانب دیکھا، جہاں سے رائد اپنی بائک پر سوار گیٹ سے نکلتا سیدھا ڈان کی جانب آتا رکا تھا۔ ہیلمٹ کا کور اوپر کر کے اس نے گردن ترچھی کر کے سڑک کے کنارے کھڑی ماں کو دیکھا، پھر ڈان کو کچھ کہتے اس نے کور واپس گرا دیا۔ دونوں نے بیک وقت ہاتھ کی مٹھی بنائے ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور پھر اگلے سیکنڈ وہ ہوا کی صورت وہاں سے نکل گئے۔ گہرا سانس بھر کر وہ اپنے قدم مخالف سمت اٹھاتی سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ میں گھر کے باہر کھڑی ہوں ماں۔ بیل دی تو ماما جاگ جائیں گی اور کلاس لگ جائے گی، پلیز دروازہ کھول دو۔ فون کان سے لگائے وہ دروازے کے سامنے کھڑی بول رہی تھی۔ سردی کے باعث گال اور ناک سرخ ہوئے پڑے تھے۔ فون بند کر کے ہاتھوں کو آپس میں زور سے رگڑا تھا۔ لاک کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی۔ ماں کے دروازے کھولنے پر بڑی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر گئی۔ یہ لندن نہیں ہے، یہ انٹارکٹیکا ہے، اتنی شدید سردی بھائی۔ سیدھا کچن کی جانب قدم اٹھاتی وہ ساتھ میں سرد موسم کا گلا بھی کر رہی تھی۔ بیگ کندھے سے اتارے شیلف پر رکھا۔ ماں نے سر نفی میں ہلائے اسے دیکھا۔ تم پڑھنے گئی تھی اور اب وقت دیکھو۔ ماما کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد اپنے کمرے میں گئی ہیں، اور ایک میسج کرنے کے بعد تم نے فون بھی بند کر دیا ہے۔ فون بند نہیں کیا، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی اور ہم سینٹرل لندن چلے گئے تھے ڈنر کے لیے۔ کھسیانی سی ہنسی ہنستی وہ بولی۔ پانی کا گلاس شیلف پر رکھتی وہ بیگ پکڑے ماں کی جانب مڑی۔ ماں، میری پیاری بہن، کافی پلا دو پلیز، بلکہ دونوں پیتے، میں جلدی سے کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ماں کا گال ہلکا سا کھینچ کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ ماں نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، پھر کچن میں داخل ہوئے کیبن سے کافی کی چیزیں نکالنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے وہاں کا کھانا کتنا اچھا تھا؟ عرصے کے بعد مجھے کسی ریسٹورانٹ کا کھانا پسند آیا، اور وہاں دیسی ڈشز بھی تھی۔ مطلب کیا ہی بات تھی آج ڈنر کی۔ کچن کے شیلف پر بیٹھی وہ پچھلے 10 منٹ سے کھانے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ تمہیں دیسی کب سے پسند آ گیا؟ کافی کا گھونٹ بھرتے ماں نے سوال کیا۔ آج سے۔
कंधे उचकाए थे। माँ सर नफ़ी में हिलाए मुस्कुरा दी। तुम्हारी तैयारी कैसी है? अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने गलत कोर्स रख लिया। उसके जवाब पर माँ ने नासमझी से उसको देखा। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कॉर्पोरेट लॉ के बजाय क्रिमिनल लॉ करना चाहिए था। कॉर्पोरेट बोरिंग लग रहा है अब। कॉफ़ी का घूंट भरते वो नाक चढ़ाकर बोली, कॉर्पोरेट लॉ बोरिंग नहीं। अगर तुमने बार टेस्ट पास कर लिया तो तुम किसी टॉप लिस्ट कंपनी में लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकती हो। देखा, ये सुनने में ही इतना बेजार कर रहा है। क्रिमिनल लॉ की बात ही और है। रोज़ नित नए क्राइम्स और फिर उनकी तफ्तीश। कितना एडवेंचरस है। उसकी बात पर माँ खाली कप लिए सिंक के जानी बढ़ी। कप धोकर वो वापस उसके सामने खड़ी हुई। इसीलिए डैडी ने तुम्हें क्रिमिनल लॉ नहीं करने दिया। वो जानते थे उनकी बेटी का दिमाग अलग किस्म का है, उसमें अमन का मादा नहीं है। माँ के संजीदा अंदाज पर वो हंसी थी। शेल्फ से उतरकर वो कप सिंक में रखती वापस मुड़ी। अमन के लिए तुम काफ़ी नहीं? उसके गिर्द बाजू बांधकर उसका गाल चूमती वो बाहर की जानी बढ़ी। मैं सोने जा रही हूँ, कल मिलते हैं। कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। माँ ने उसका गंदा कप सिंक में पड़े देखकर सनफी मिला। ये लड़की नहीं सुधर सकती। ओह, मुझे याद आ, डैन तुम्हारे लिए पूछ रहा था। सीढ़ियों की जानिब बढ़ते कदम माँ की बात पर रुके थे। नूरे ने फ़ौरन मुड़कर उसे देखा। कब? क्यों? तुम्हारे मैसेज करने के कुछ देर बाद। और उसने बताया नहीं क्यों, सिर्फ यही कहा कि वो खुद मिल लेगा। जवाब पर नूरे ने माथे पर बल डाले थे। फिर कंधे उचकाए वो वापस मुड़ गए। सीढ़ियों पर कदम रखते जहन में झमाका सा हुआ था। राइड पर चलो मेरे साथ, कल शाम 8 बजे। डैन के मैसेज याद आते हुए उसका मुंह हल्का सा हुआ था। वो सिरे से ही भूल चुकी थी। कमरे में पहुंचकर चार्जिंग पर लगा मोबाइल देखा तो डैन के कई मैसेज और मिस्ड कॉल्स भी थी। अगर उसे मेरे साथ राइडिंग का इतना ही शौक था तो मुझे ढूंढ भी तो सकता था ना। मेरा कोई कसूर नहीं। फ़ोन वापस रखती वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोलती जैसे खुद को बरी कर गई थी। तुम कहाँ जा रहे थे? तुमने तो राइड के लिए इनकार कर दिया था। हेलमेट सर से उतार कर बाइक पर रखता वो तफ्तीशी अंदाज में बोला। माथे पर आए बालों को हाथ की मदद से पीछे किए सेट किया। सवाल पर डैन ने गर्दन मोड़े उसे देखा। मेरा इरादा बन गया था। बेवकूफ़ समझा है? अब की मर्तबा डैन ने माथे पर बल डाले उसे देखा। हर बात बताना ज़रूरी है सुल्तान? उसके संजीदा लहजे पर राइड ने हल्की हैरत से उसे देखा। डैन और संजीदा नामुमकिन सा जोड़ था, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो संजीदा था। वो इस वक्त ऑक्सफोर्ड रोड के दरमियान में बाइक एक तरफ लगाए खड़े थे। रात की गहमा गहमी उरूज पर थी। कैफ़े और होटल लबालब भरे थे। ज़रूरी है, तुम्हारी ज़ात से मुतालिक हर बात जाना मेरा फ़र्ज़ है। डैन ने उसके जवाब पर चंद लम्हे उसे देखा, फिर खामोशी से नज़रें सामने सड़क की रौनक पर टिका दी। राइड अपनी बाइक से उतरकर उसके साथ खड़ा हुआ। नाम बताओ। क्या मतलब? नाम बताओ, किसका मुंह हाथ टांग जबड़ा तोड़ना है? राइड की बात पर डैन ने आंखें खोले उसे देखा, फिर नूरे का चेहरा याद करते एक मर्तबा झुरझुरी से ली। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है सुल्तान। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं किसी के पुर्जे ढीले करना चाहता हूँ। तुम बस नाम बताओ। कोई नहीं है भाई। हाथ उठाकर राइड ने उसके कंधे पर रखे, उसे अपनी जानिब मोड़ा। कोई तुम्हें सख्त निगाह से देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा डैन। तुम्हें हर्ट करने वाली कि तुम्हें जान जिस्म से अलहदा कर दूँ। उसके मजबूत लहजे पर डैन ने चंद लम्हे उसे देखा और फिर सर गिराया, हल्का सा हंस दिया, कंधे पर रखे हाथ को हल्के से थपथपाया। मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहता। उसका लहजा शरीर हुआ था। राइड वापस अपनी बाइक के साथ टेक लगाए खड़ा हुआ। मैं राइड सुल्तान जेल में? नामुमकिन सी बात है। खुद एतमादी उरूज पर थी। डैन ने सनफी महिलाएं मुस्कुराहट दबाकर उसकी खड़ी नाक को देखा। राइड सुल्तान और उसकी सुल्तानिया। सुल्तानों का खून हो, सुल्तानियत विरासत में मिली है। जैकेट का कॉलर अकड़ाकर बोलने पर डैन कह कहा लगाए हंस दिया। डैन को हंसता देखकर दिल में यकगुना सा सुकून उतरा था। वो संजीदा अच्छा नहीं लगता था। वो हमा वक्त मुस्कुराता, कह कहे लगाता और शरीर सा ही अच्छा लगता था। अगली मर्तबा तुम बिगड़ी शक्ल मज़ीद बिगाड़े नजर आए तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। बाइक पर सवार होता डैन लम्हे भर कर रुका। मेरी शक्ल की बात मत करो सुल्तान। सिर्फ इन गढ़ों पर पूरा लंदन सदके जाता है। वो पूरा लंदन दरिया में खुद को बहा दे तो बेहतर है।
बज़ाहिर लापरवाही से कहता वो मुस्कुराहट दबाए, हेलमेट सर पर रखे बाइक स्टार्ट करने लगा। तुम मेरे हाथों ज़ाये हो जाओगे सुल्तान। सर नफ़ी में हिलाए, उसने भी राइट की पैरवी की। हेलमेट का कवर उठाया, उसने 4 उंगलियां उठाए, डैन की जानिब इशारा किया। पार्क लेन यहाँ से 10 मिनट पर है, मैं सिर्फ 4 मिनट लूँगा। कवर वापस गिरा दिया। और मैं 2.5 मिनट। एक लम्हा डैन उसके साथ खड़ा था और अगले लम्हे उसकी बाइक राइड से आगे थी। एक कहकहा हवा के सुपुर्द करता राइड उसके पीछे लपका। सिया मर्सिडीज स्टूडियो के सामने आकर रुकी थी। पिछली सीट पर बैठे उसने अपनी तरफ का शीशा हल्का सा नीचे उतारे, स्टूडियो के दरवाजे की जानिब देखा। सांस हल्की सी बेतरतीब हुई थी। आप यहीं इंतज़ार करें, ड्राइवर को हिदायत करती वो अपना बैग थामे कार से उतरी। छोटे छोटे कदम उठाती वो स्टूडियो के सामने खड़ी हुई। एक दिल चाहा वापस मुड़ जाए, फिर सर नफ़ी में हिला, इरादा तर्क किए वहीं खड़ी रही। हाथ आपस में रगड़ते हथेलियों में आया पसीना साफ करने की कोशिश की। एक गहरा सांस खींचकर हवा के सुपुर्द करती वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे चंद सेकंड रुकी, फिर दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। बाहर का शोर एकदम गायब हो गया। रीम ने सर दाएं बाएं घुमाए, एक मरतबा स्टूडियो का जायज़ा लिया। वो बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा भी नहीं था। इंटीरियर डिज़ाइन से लेकर पेंट, हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी। दीवारों पर हाथ के लिए गए फ्रेम लटके थे। बिलाशुबा वो एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र था। कदम बढ़ाती वो आगे बढ़ी। खाली काउंटर को देखती वो चंद लम्हे रुकी, फिर मज़ीद आगे बढ़ी। शूटिंग हॉल उस वक्त खाली था, जबकि एक तरफ लगे सिस्टम के सामने बैठा वो यकीनन एडिटिंग में मसरूफ़ था। उसके चेहरे का एक रुख रीम की जानिब था, जिसे देखते ही रीम के लबों पर खूबसूरत से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उसकी नज़रें स्क्रीन पर, जबकि हाथ माउस पर था। दूसरा हाथ उसने मुट्ठी की सूरत बनाए अपनी ठोड़ी के नीचे रखा था, जैसे वो काम के साथ साथ सोच भी रहा हो। ग्रे स्वेटर के साथ सियाह जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल सलीके से सेट हुए थे। स्वेटर के बाजू कोहनियों से कुछ नीचे तक चढ़ा रखे थे। एक कलाई खाली थी, जबकि दूसरी में घड़ी बंधी थी। आंखों पर चौड़े फ्रेम वाली ऐनक लगा रखी थी। वो काम करते वक्त अक्सर ऐनक का इस्तेमाल किया करता था। रीम ने खड़े खड़े उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। बिलाशुबा हादे खूबसूरत और ज़हीन इंसान था। सिर्फ शक्ल और सूरत से ही नहीं, वो दिल का भी उतना ही खूबसूरत था। हाँ सॉरी, मैं लेट। अचानक और कदरे बुलंद आवाज़ पर डर के मारे रीम चीख मारती पीछे मुड़ी। जब पास खड़े स्टैंड से ठोकर खाने पर वो स्टैंड को ही थामने की जद्दोजहद में स्टैंड समेत ज़मीन पर गिरी। चीख की आवाज़ पर जहाँ हॉल के दरवाजे पर लड़का मुंह वाकिए खड़ा था, वहीं हाथ ने हैरत से गर्दन मोड़ कर देखा। पहले नस्वानी चीख और फिर स्टैंड के फर्श से टकराने की ज़ोरदार आवाज़ पर सब अपनी अपनी जगह पर चंद लम्हे साकित हुए थे। रीम अपनी जगह से उठता हाथ फ़ौरन उसकी जानिब लपका। ज़मीन पर उसके सामने बैठे उसका बाजू हल्के से थामे उसे सीधा किया। रीम ने नज़रें उठाए उसे देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा हैरत थी, जबकि रीम की सुनहरी आंखों में शर्मिंदगी की ज़रा सी रमक थी। सॉरी, मैं वो अचानक आवाज़। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी कहीं? उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। रीम ने सर नफ़े में हिलाया। हाथ ने नज़रें दरवाजे की जानिब की, जहाँ वो लड़का अभी भी खड़ा सामने हुई कार्रवाई देख रहा था, मगर अब हैरत की बजाय वहाँ दिलचस्पी के तासुरात थे। तुम ऐलान करने की बजाय सुकून से बात नहीं कर सकते थे? वो उसे डपट रहा था, लेकिन लहजा अब भी नर्म था। रीम ने अपना बाजू देखा, जो अभी भी हाथ की गिरफ्त में था। मुझे क्या पता था यहाँ कोई कस्टमर है। काउंटर पर जाओ। हाथ के कहने पर सर हिलाता वो वहीं से मुड़ गया। वो कोई 20-21 साल लड़का था, जो हाथ के स्टूडियो में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करता था। रीम का बाजू थामे ही अपनी जगह से खड़े होते हाथ ने उसे ज़मीन से खड़ा किया। तुम्हें यकीन है कि कहीं चोट नहीं लगी? वो फिर से पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ। वो बैग उठाने के लिए झुकने ही वाली थी, जब हाथ उससे पहले झुकते उसका बैग ज़मीन से उठा चुका था। ये स्टैंड मेरा पाँव लगने से गिर गया। उसकी आवाज़ में अफसोस था, जिसे महसूस करते हुए हाथ से नफ़ी में हिलाए मुस्कुरा दिया। स्टैंड ज़रूरी नहीं है। वो रुका, एक नज़र सर तपा उसे देखा। हल्के गुलाबी रंग की स्कर्ट पर सफ़ेद हाई नेक शर्ट पहने अपने सुनहरी बालों को उसने दरमियान से मांग निकाले पीछे खुला छोड़ रखा था। वो प्यारी थी, या शायद हाथ को हद से ज़्यादा प्यारी लगती थी। तुम यहाँ मेरे स्टूडियो में? हाथ के सवाल पर उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो यहाँ क्यों आई थी? वो दरअसल मैं यहाँ से गुज़र रही। बात के दौरान ही वो रुकी थी।
نہیں، بلکہ مجھے کچھ تصاویر فریم کروانی تھی۔ ہاتھ اس کی باتوں پر مسکراہٹ دبائے کھڑا سرسوات میں ہلایا گیا۔ بیگ سے فون نکالے ریم نے کچھ تصاویر نکال کر موبائل ہاتھ کے سامنے کیا۔ ان کے فریمز چاہیے تمہیں؟ ہاں۔ بیٹھو گی؟ ہاتھ نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ سر ہلاتی ریم کرسی کی جانب بڑھی، جبکہ ہاتھ اس کے فون میں اس کی بتائی گئی تصاویر دیکھنے لگا۔ وہ ریم کی اپنی تصاویر تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ کسی گارڈن میں پھولوں کے وسط میں لی گئی تھی۔ پھولوں والی میکسی پہنے، کھلکھلاتی سی، وہ وہاں موجود پھولوں کو مات دے رہی تھی۔ کب تک مل جائے گی؟ ریم کی آواز پر وہ اس کی تصویروں کے ٹرانس سے باہر نکلا۔ سر نفی میں ہلائے وہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کب تک چاہیے ہیں تمہیں؟ جب مرضی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاتھ نے ہلکا سا مسکراتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مل جائیں گی، تمہیں اسٹوڈیو بھی آنے کی ضرورت نہیں، میں خود گھر دے دوں گا۔ اس کی بات پر ریم کی مسکراہٹ ڈھلی۔ خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھا۔ میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تمہیں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ریم اس کے سامنے ہو اور اسے برا لگ سکتا تھا۔ تم نے خود کہا کہ مجھے اسٹوڈیو آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایسا اس لیے کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہان نے اس کے سنجیدہ لہجے کو محسوس کیا، پھر ہلکا سا مسکراتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو ریم، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس کا موبائل کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے وہ بولا، تو ریم کو دل میں پھوار سی پھوٹتی محسوس ہوئی، جسے نظر انداز کرتی وہ ہاتھ کو کام کرتے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد تصاویر کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر کے ہاتھ نے موبائل اس سے واپس تھما دیا۔ شکریہ۔ فون واپس بیگ میں رکھتی وہ کھڑی ہوئی، ہاتھ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کیسے آئی ہو؟ ڈرائیور کے ساتھ، جواب دے کر اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کافی کے لیے رک سکتی ہو؟ ہاتھ کے نرم سے لہجے میں پوچھنے پر ریم کا باہر کی طرف اٹھتا قدم رکا۔ رخ ہلکا سا موڑ کر اسے دیکھا۔ میں موم کو بغیر بتائے ان کی گاڑی لے کر آئی ہوں، زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ کافی اگلی مرتبہ، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا کر وہ وہیں سے مڑتی باہر نکل گئی۔ ہاتھ سر گرائے مسکرایا تھا، پھر وہ بھی باہر کی جانب بڑھا۔ گلاس ڈور سے اس نے ریم کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک گاڑی نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ لوہے کی سلاخوں پر زوردار دستک کی آواز پر وہ جھرجھری لے کر سیدھا ہوا۔ نظریں دائیں بائیں گھمائے اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ایک شکست خوردہ سانس کھینچی تھی۔ یہ اسٹوڈیو نہیں تھا، وہ سسٹم کے آگے بیٹھا کام نہیں کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہاں ریم نہیں تھی۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، تنگ اور تاریک کمرے میں۔ سامنے کھلی کتاب بند کرتا وہ کرسی سے اٹھ کر سلاخوں کی طرف بڑھا۔ جیلر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ اوہ، آج اتوار تھا۔ سر کو جنبش دے کر اس نے بستر پر پڑا اپنا ہوڈ اٹھایا اور اسے پہن کر کھلے دروازے سے وزٹنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ ایک کونے میں لگی کرسیوں میں اسے ایک پر بیٹھی ماں اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ پالی تھی۔ ہاتھ، کیسے ہو بھائی؟ ہمیشہ کی طرح بازو اس کے گرد باندھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ سکون کی لہر اس کے وجود میں اتری تھی۔ ہاتھ نے ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہلکا سا تھپتھپایا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، آمنے سامنے بیٹھتے ماں نے جواب دیا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا آج اتوار ہے۔ ماں نے بغور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقوں کو دیکھا۔ پورے ہفتے میں ایک یہی دن تو مجھے یاد رہتا ہے، اور میں اسی دن کا انتظار کرتی ہوں۔ ہاتھ ہلکا سا مسکرایا۔ پچھلے اتوار تم نہیں آئی تھی، مجھے لگا اس مرتبہ بھی شاید بھول گئی۔ وہ بظاہر سرسری سا انداز اپنائے ہوئے تھا، لیکن ماں اس کے دل کا حال جانتی تھی۔ وہ چاہے کہتا رہے کہ تم یہاں مت آیا کرو، مگر وہ ہر اتوار اس کا انتظار کرتا تھا۔ پچھلے ہفتے کسی کنسٹرکشن کی وجہ سے ٹیوب بند تھی۔ میں نے یہاں فون بھی کیا تھا کہ تم سے بات ہو جائے، لیکن لائن مسلسل مصروف جا رہی تھی۔ میں نے رومان سے بولا تھا کہ تمہیں انفارم کر دے، کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ہاتھ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بتایا تھا، میں بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ ماں نے ہلکا سا آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں ساری دنیا کو فراموش کر سکتی ہوں ہاتھ، لیکن تمہیں نہیں۔ میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے ہاتھ کی رہائی سے پہلے موت نہ دینا۔ میں نہ رہی تو ہاتھ کو کون دیکھے گا؟ میں نہ رہی تو ہاتھ سے کون ملا کرے گا؟ کون اس کی رہائی کی کوشش کرے گا؟ نم لہجے میں اس کی بات پر ہاتھ نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ تمہیں بہت لمبی عمر دے۔ لمبی عمر نہیں چاہیے،
کیونکہ جتنی لمبی زندگی ہوگی غم تکلیف بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اب کی مرتبہ وہ خاموش رہا تھا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ ماں نے سر اٹھائے، اسے دیکھا جو خاموشی سے ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ تو پھر میں چاہوں گی کہ میری عمر بڑھ جائے، کیونکہ پھر زندگی خوبصورت ہوگی۔ میرا بھائی میرا ہاتھ میرے ساتھ ہوگا۔ ہاتھ اب بھی خاموش رہا، صرف سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ ماں نے اس کا مایوس چہرہ دیکھا، وہ امید کھو چکا تھا۔ اب رہائی کی بات محض بات ہی لگتی تھی، امید سے خالی بات۔ رومان کل یا پرسوں تک واپس آ جائے گا، پھر ہم تمہارا کیس دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ میں بہت پر امید ہوں ہان، مجھے رومان پر بھروسہ ہے، لیکن اس سب کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بے قصور ہو کر بھی 3 سال سے زیادہ عرصہ سے یہاں قید ہوں۔ جب میری بے گناہی ثابت کرنے کا وقت تھا تب کچھ نہیں ہو سکا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ تب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ہان، جو کچھ تھا سب تمہارے خلاف تھا، جو نہیں بھی تھا اس کو بھی تمہارے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ تمہارے کمرے کی ہر چیز سے لے کر تمہارا وکیل تک تمہارے حق میں کچھ نہیں کر سکا۔ ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے، اب میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں اب ہر حد تک جاؤں گی۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا، جیسے وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہو۔ ہاتھ نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں اس بیکری کا نام بھول گیا ہوں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ریم کو وہاں کی چیز کیک بہت پسند تھے۔ وہ مے فیئر اور پارک لین کے درمیان میں تھی، اتنی مشہور نہیں تھی۔ جانے اب وہ وہاں ہوگی بھی یا نہیں۔ کیا وہ روڈ سائڈ پر تھی؟ نہیں، روڈ سے اتر کر ایک اسٹریٹ میں جانا پڑتا ہے۔ ماں اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتی اپنی سیٹ پر پیچھے ہوئے بیٹھی۔ ہم ڈھونڈ لیں گے ہان۔ بیل کی آواز پر وہ بیگ تھامتی کھڑی ہوئی، جھک کر ہاتھ کے ماتھے کو ہلکا سا چوما۔ میں پھر آؤں گی، مسکرا کر کہتی وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ماہی، ہاتھ کی آواز پر وہ رک کر واپس مڑی۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر وہ اس کی جانب بڑھا، خاموشی سے اس کے گرد بازو پھیلائے، اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ تھینک یو ماہی۔ پیچھے ہٹتے وہ مسکرا کر بولا، بہن بھائیوں میں شکریہ جیسے تکلفات نہیں ہوتے ہان، وہ جان مانگے تو بلا جھجک دے دینی چاہیے۔ یہ صرف ماہی دورہ کر سکتی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کا ہاتھ تھام کر دباتی، وہ بیگ کندھے سے لگائے ایڑیوں کے بل واپس مڑتی، وزٹنگ ایریا سے باہر نکلتی چلی گئی۔ لیکچر کے اختتام پر وہ بیگ اور لیپ ٹاپ سنبھالتی، دوستوں کو مطالعہ کرتی سیدھا کیفے کی جانب بڑھی۔ کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اگلی کلاس شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ بھی باقی تھا۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر کونے کی ٹیبل پر پڑی۔ سب جانے پہچانے چہرے تھے، لیکن وہ ڈکسن پون کے کیفے میں کیا کر رہے تھے؟ ان سب کے درمیان میں بیٹھا ڈین سب سے نمایاں تھا۔ اپنی مخصوص ہنسی مزاح والی عادت کے ساتھ وہ ہر جگہ ایک اہم کردار بن جاتا تھا۔ نورے نے پورے ٹیبل کا جائزہ لیا۔ ایزابیلا لیانا ساتھ میں بیٹھی تھی، جبکہ ڈین اور فلورا ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ رائد غائب تھا۔ فلورا کی ساری توجہ کچھ بات کرتے ہوئے ڈین پر تھی۔ نورے نے ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھا، پھر اپنی چیزیں ٹیبل پر رکھی۔ بات مکمل کر کے وہ چاروں بیک وقت کہہ لگائے ہنسے تھے۔ یہ ڈین کب سے لطیفے سنانے لگ گیا ہے؟ دل میں سوچا تھا۔ کاؤنٹر کی جانب بڑھ کر کافی کا آرڈر دے کر اپنی کافی پکڑتے وہ واپس اپنے ٹیبل پر آئی۔ ہنسی کے دوران ڈین کی نظر ایک طرف بیٹھے نورے پر پڑی۔ ہنسی کو بریک لگی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ اسے دیکھنے پر نورے نے مسکراہٹ سجائے ہاتھ اٹھائے اس کی جانب لہرایا۔ جواباً ڈین نے نظریں پھیری، توجہ ساتھ بیٹھی فلورا کی جانب کی۔ ہوا میں اٹھا اس کا ہاتھ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا تھا۔ بے حد حیرانی سے ڈین کو دیکھا، جو نظریں گھما چکا تھا۔ ڈین نورے کو نظر انداز کر چکا تھا۔ نورے کو دل عجیب سا ہوا تھا، غصہ نہیں آیا تھا بلکہ برا لگا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے کافی کا کپ منہ سے لگائے، اپنے سامنے کتاب کھولی۔ ہنسی کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن وہ مزید ایک بھی نظر سامنے ڈالے بغیر بیٹھی اپنے کافی سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ کافی ختم کر کے کپ ٹیبل پر رکھتی، وہ کتاب بند کر کے سامان سمیٹتی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ میں رائد کو دیکھ کر آتا ہوں، ڈین کی آواز کانوں میں پڑی تھی، اور پھر اگلے لمحے وہ اس کے پاس سے گزرتا کیفے سے باہر نکل گیا۔ بیگ کندھے سے لٹکاتی، لیپ ٹاپ تھامے وہ تیزی سے کیفے سے باہر بھاگی۔ ڈانی، پیچھے سے آواز آئی تھی، لیکن وہ کوریڈور میں چلتا جا رہا تھا، شاید سن نہیں سکا تھا یا سن کر انسنی کر گیا تھا۔ نورے مزید تیزی سے بھاگتی اس کے عین سامنے رکی۔ اچانک نمودار ہونے پر ڈین نے بریک لگائے، پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ ڈینی، میں تمہیں آوازیں دے رہی تھی۔ بھاگنے کے باعث سانس پھولا تھا، میں نے سن لی تھی۔
सीने पर हाथ रखे सांस बहाल करते नूरे ने रुक कर उसे देखा। आंखों में हैरत छाई थी। तुमने फिर भी नज़रअंदाज कर दी? लहजा हैरानगी लिए हुए था। बुरा लगा? सवाल में तंज का आंसर शामिल था। इग्नोर होना किसको बुरा नहीं लगता डानी, वो भी अपने दोस्त से। बिल्कुल, इग्नोर होना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। बाजू सीने पर बांधे वो अपनी बात पर जोर देकर बोला। नूरे ने लैपटॉप एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट किया। डैन का ये अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था उसे। वो डैन के इस लहजे की आदी नहीं थी। ऐसे क्यों बात कर रहे हो डैनी? डैन ने बगैर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे, जैसे उसको सूरत हाल अच्छी न लग रही हो। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुम अपने दोस्तों के साथ डिनर पर चली गई बताए बगैर। नूरे का मुंह ओ की सूरत खुला था। तो ये बात थी, मैं भूल गई थी। मैं तुम्हें याद भी कैसे रह सकता हूँ? तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो बोला। तो नूरे ने सर नफ़ी में हिलाए अफसोस से उसको देखा। तुम ऐसी बात नहीं कर सकते डैनी, मैं सच में भूल गई थी और डिनर का इरादा बाद में बना था। मैं ग्रुप स्टडी के लिए दोस्तों की तरफ गई थी। तफसीलियात की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। बात मुकम्मल की उसने आगे जाने के लिए कदम उठाया। नूरे फ़ौरन उसके सामने आई थी। तो फिर तुम मुंह क्यों फुला रहे हो? इतनी बड़ी बात भी नहीं है। कंधे उचकाने पर डैन ने संजीदगी से उसके लापरवाह अंदाज को देखा। मेरा कुछ वक्त ही ज़ाया हुआ इंतज़ार में, बस इसके अलावा इतनी बड़ी बात नहीं। तो मत करते इंतज़ार। वैसे भी मैं राइड के लिए इनकार कर चुकी थी। डैन ने खामोशी से चंद लम्हे उसको देखा। आंखों में एक तासुर सा लहराया था। आइंदा नहीं करूँगा। आवाज़ ज़रा सी हल्की थी। नूरे को कुछ गलत हो जाने का एहसास हुआ। एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया था। देखो डैनी। डैन। राइड की आवाज़ पर नूरे की बात हवा में ही मौलिक रह गई। आंखें ज़ोर से मींचकर उसने करीब आते राइड को देखा। मैं तुम्हें ही देखने आ रहा था। सब आ गए? नहीं, सिर्फ हम ही हैं। अभी 11 नहीं बजे। घड़ी की जानिब देखता वो बोला। राइड सर खम करता एक नज़र नूरे पर डालता कैफ़े की जानिब बढ़ गया। डैन ने खामोश खड़ी नूरे को देखा। क्लास में जाओ, अपनी बात कहता वो वहीं से मुड़ते कैफ़े की तरफ बढ़ गया। नूरे ने उसे जाते देखा। वो नाराज़ था। गहरी सांस भरती वो सरनफ़ी में हिलाए अपनी अगली क्लास के लिए चल पड़ी। कैफ़े के एक कोने में 2 टेबल जोड़े वो 9 लोग खामोशी इख्तियार किए बैठे थे। किसी ने लैपटॉप खोल रखा था तो कोई किताब के वर्के उलट पुलट कर रहा था। 3 सालों में यह पहला मौका था कि वो सब एक जगह एक साथ आमने सामने बैठे थे। फ़िज़ा में तनाव सा था। कोई दूर से बैठा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि आपस के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। किताब के ज़ोर से बंद करने की आवाज़ पर माँ ने नज़रें लैपटॉप से हटाए सामने बैठे डैन को देखा, जो किताब से खेलकर अब शायद आजिज़ आ चुका था। डिक्सन पून का कैफ़े तो लाइब्रेरी से भी ज़्यादा वीरान है। लहजा भी बोरियत से भरपूर था, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने वाले और तमीज़दार हैं। जवाब आमना की जानिब से आया था। बिज़नेस स्कूल में भी कुछ लोग बहुत पढ़ने वाले हैं शायद, तमीज़ तो कहीं नहीं देखी। आपकी मर्तबा तीर इज़ाबेला की जानिब से आया था। आमना ने आंखें चोटी किए उसे देखा। डैन दिलचस्पी से जवाबात के तीर मुलाहिजा फरमा रहा था, चिंगारी जो उसने लगाई थी, जबकि राइड ने एक मर्तबा भी नज़र लैपटॉप से नहीं उठाई थी। जब बदतमीज़ी हद से ज़्यादा हो तो तमीज़दारी अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ज़की ने नरमी से जवाब दिया था, लेकिन जवाब में छुपा मतलब सब बखूबी जानते थे। इससे साबित हुआ कि बदतमीज़ लोग ही हमेशा मशहूर और मरगूब होते हैं, इसीलिए हमेशा बदतमीज़ रहें, ना कि तमीज़दार बनकर नज़रअंदाज हो जाएं। हाथ खड़े किए डैन ने सबकी जानिब नज़रें घुमाए एक छोटा सा लेक्चर दिया था। लहजा शरीर था। किसी ने सर नफ़ी में हिलाया तो किसी ने हंसी दबाई। कम अज़ कम बदतमीज़ लोग तमीज़दारों की तरह किसी को जज नहीं करते। बहुत ही पुरसुकून लहजे में जवाब राइड की जानिब से आया था। नज़रें ज़की पर थी। सबकी नज़रें राइड की जानिब मुड़ी थी। माँ ने हैरत से उसे देखा। जज करने वाली तो कोई बात ही नहीं, सब कुछ आंखों के सामने है। ज़की ने भी उसी के लहजे में जवाब लौटाया था। माँ ने आंखें खोले ज़की को वार्न करना चाहा, लेकिन उसकी तवज्जो मुकम्मल राइड की जानिब थी। फ़िज़ा में तनाव मज़ीद बढ़ चुका था। बिल्कुल, सब आंखों के सामने हैं। शक्ल पर शराफत का टैग लगाकर दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते। राइड के जवाब पर एक मर्तबा सबने दम साधे उसकी जानिब देखा। टेबल पर छाई खामोशी मज़ीद गहरी हुई थी।
ज़की ने कुछ बोलने को मुंह खोला ही था जब माँ ने हाथ उठाया, हल्का सा उसके बाजू पर रखा, फिर अपना लैपटॉप उसकी जानिब खिसकाया। फिजूल बहस के बजाय काम पर ध्यान देते, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। जहाँ सबने सर नफ़ी में हिलाए, तवज्जो वापस अपनी मसरूफियात पर लगाई थी, वहीं राइट की नज़र माँ के हाथ पर अटकी थी, जो ज़की के बाजू पर था। हाथ मुट्ठी की सूरत बंद हुए थे, दांत किचकिचाने पर जबड़ा भींचा था। नज़रों की तपिश महसूस की। माँ ने सर उठाए उसे देखा। नज़रों की से देखने से पहले माँ अपना हाथ हटाए टेबल पर रख चुकी थी। राइट की नज़रें वापस उसकी जानिब आई। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर वो नज़रें घुमाए वापस लैपटॉप पर टिका चुका था। माँ ने रुकी सांस बहाल करते सर नफ़ी में हिलाए, मज़ीद गैर ज़रूरी ख्यालात को दिमाग से निकाल कर तवज्जो काम की जानिब मरकूज़ कर ली। नीम रोशन कमरे में बेड के वस्त में औंधे मुँह लेटा वो कई देर से किसी गैर मरई नुक्ते को तक रहा था। कमरा सिवाय उसके सांस लेने की धीमी सी आवाज़ के मुकम्मल खामोशी में डूबा था। बेड साइड पर पड़े लैपटॉप की हल्की रोशनी में नीली आंखें यूं मालूम हो रही थी जैसे समुंदर का पानी शाम के सुरमई अंधेरे में डूबा हो। चेहरा दाईं तरफ मोड़े तकिए पर रखा था। वो बिना हरकत किए कई देर से यूं ही सोचों के महवर में डूबा हुआ था। चंद मजीद लम्हे गुजरे थे जिसमें हरकत पैदा हुई थी। बाजू बढ़ाकर उसने बेड साइड से अपना फ़ोन पकड़ा। लॉक के बाद उसने गैलरी खोली। एक मखसूस फोल्डर पर उसका अंगूठा चंद सेकंड के लिए साकित हुआ था, फिर बिला आखिर स्क्रीन को छूकर फोल्डर खोल लिया। दिल एक पल के लिए बैठ गया, यूं जैसे धड़कना भूल गया हो। आंखों को जोर से बंद करके उसने खोला। पहली तस्वीर को खोला। सुनहरी बालों वाली प्यारी सी लड़की का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आया। राइड ने उसके कंधों के गिर्द बाजू बांधे अपने हिसार में ले रखा था। ये तस्वीर उनकी 18वीं सालगिरह की थी। अगली तस्वीर में राइड उसके गाल पर केक लगा रहा था, जिस पर रीम मुंह फुलाए एहतिजाज कर रही थी। गैर महसूस अंदाज में उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उससे अगली तस्वीर में वो पंजों पर खड़ी हुई राइड का गाल चूम रही थी। मुस्कुराहट जरा सी गहरी हुई थी, लेकिन अब की बार आंखों में जलन सी भी महसूस हुई। उससे अगली तस्वीर में यूसुफ सुल्तान और रोज़ी रीम को अपने हिसार में लिए खड़े थे। तीनों के चेहरे मुस्कुराहट में चमक रहे थे। अगली तस्वीर में वो चारों मौजूद थे। एक जानिब से राइड, जबकि दूसरी जानिब से यूसुफ सुल्तान ने बाजू फैलाए दो सुनहरी बालों वाली लड़की को हिसार में ले रखा था। आंखों की जलन में मजीद इजाफा हुआ था, लेकिन उसने आंखें झपक कर जलन को कम करने की कोशिश नहीं की थी। अगली तस्वीर में जैन उन दोनों के दरमियान में खड़ा उन्हें शानों से थामे हुए था। तीनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। अगली तस्वीर में जैन रीम के सर पर रखा छोटा सा ताज ठीक कर रहा था, जो फिसल कर टेढ़ा हुआ गिरने को तैयार था। वो रुक गया, तस्वीर आगे नहीं बढ़ाई। आंखों की चुभन में इजाफा सा हुआ था। जैन उसका दोस्त था, वो राइड से भी ज़्यादा जैन के साथ वक्त गुजारती थी। जैन के ऑफिस से आने के बाद वो घंटों लॉन में बैठे जाने कौन से राज व न्याज किया करते थे। रीम के बाद वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। जो उसे बोलने पर उकसाती थी वो अब जा चुकी थी। अंगूठे को हरकत देकर उसने अगली तस्वीर निकाली। तस्वीर आंखों के सामने आई। एक लम्हे के लिए सांस गले में अटक गया, दुश्वारी सी हुई। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने सांस उसके सीने तक पहुंचने से रोक दी हो। माहे दौरा ने रीम को दोनों बाजुओं में थाम रखा था। उनके सर आपस में जुड़े हुए थे और वो हंस रही थी। साथ खड़ा राइड उसे देख रहा था। साथ खड़ा राइड मून को देख रहा था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। साथ खड़े राइड की आंखों में बेइंतहा उनसियत थी। वो साथ खड़े राइड को पहचान नहीं सका। वो उसकी चमकदार नीली आंखें नहीं पहचान सका। वो राइड सिर्फ तस्वीर की हद तक ही रह गया था। हकीकत में राइड सुल्तान बदल गया था, सरापा बदल गया था। नजरें चुराए अगली तस्वीर निकाली तो वो ना चाहते हुए भी रुक गया। वही 3 नफूस थे, वही मुस्कुराहटें थी, वही मोहब्बतें थी। राइड ने बगौर तस्वीर में मौजूद उन 3 नफूस को देखा। आंखें अब जलने को बेताब थी। ये तस्वीर और उसमें मौजूद नफूस कुल कायनात थे। उन पर दुनिया तमाम थी, और बिल्कुल ऐसे ही उन दोनों ने उसकी दुनिया तमाम कर दी। मुस्कुराहटें छीन ली, आंखों की चमक मान पड़ गई। झटके से फ़ोन बंद करके खुद से दूर करता वो सीधा हुए लेटा, खाली खाली आंखों से नीम अंधेरे में डूबे कमरे की सीलिंग को तकने लगा। यादें तकलीफदा थी, सीने में खंजर की मान लगती थी। यकायक कानों में आवाज़ें गूंजने लगी थी, किसी की पुकार, किसी की आहें। उसने आंखों को जोर से मींच लिया। चेहरे पर कर्व फैला था, आंखों के किनारे पर नमी सी उभरी थी। वो ठीक हो जाएगी,
वो आंखें खोलेगी, वो मुझसे बात तो करेगी ना, मुझे आवाज़ देगी ना। नीली आंखें सुर्खी माइल हुई थी, उनमें आंसू लरज रहे थे, बाल बिक रहे थे, शर्ट और हाथों पर खून के निशानात थे जो अब खुश्क हो चुके थे। वो इमरजेंसी रूम के सामने खड़ा वहाँ मौजूद हर फर्द से सवाल कर रहा था। डैन ने उसे कंधों से थामने की कोशिश की, लेकिन उसने एक झटके से खुद को आज़ाद करवा लिया। मुझे हौसला मत देना, मुझ में हिम्मत, हौसला नहीं डैन, आज कुछ भी नहीं है, आज मैं बेजान हो रहा हूँ। आंसू बहाती रोज़ी के गिर्द से हिसार खोले। यूसुफ सुल्तान खड़े होते उसकी जानिब बढ़े, उसके सामने खड़े होकर एक पल को उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखा, फिर कंधों से थामे उसे अपने साथ लगा लिया। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे राय, खुद को इस कदर तकलीफ मत दो। बाप की बात पर फोन से अलग हुआ। उनकी सुर्ख आंखें पता दे गई थी कि वो खुद पर काबू किए हुए थे। वो उन सब के सामने बिखरना नहीं चाहते थे। मैं तकलीफ़ में हूँ डैड, ये यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ दर्द हो रहा है। हाथ सीने पर रखे वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला था। आवाज़ में कर्ब था, आवाज़ से तकलीफ़ झलक रही थी। वो मेरी ज़ात का हिस्सा है डैड, मेरी ज़ात तकलीफ़ में है, मेरा वजूद तकलीफ़ में है। आंखों में लरसते आंसू अब गालों पर बहे थे। उसका जिस्म सर्द था डैड, वो सांस नहीं ले रही थी। चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो अब की मर्तबा ज़ारों का तार रोया था। यूसुफ सुल्तान ने आगे बढ़ते उसे अपने बाजुओं में लिया, उसके गिर्द बाजू बांधे, मजबूती से अपने साथ लगाया। आंसू उनकी आंखों से गिरते रायत का कंधा भिगो रहे थे। रायत की आंसू में मजीद तेजी आई थी, जिस्म हिचकोले ले रहा था। पास खड़े डैन ने हाथ आंखों पर रखकर दबाए, आंसू बाहर आने से रोके थे। उसका दोस्त तकलीफ में था। बेंच पर बैठी रोज़ी मुसलसल रो रही थी, जिसे जैन अपने हिसार में लिए हुए था। कभी उसके आंसू साफ कर रहा था तो कभी सर को थपथपा रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स उस वक्त अपने अंदर की जंग से लड़ रहा था। कब से बंद आंखें हौले से खोली थी, आवाज़ें गायब हो चुकी थी। अब कमरे में हर सू खामोशी छाई थी, काट खाने वाली खामोशी। गहरा सांस खींचकर वो उठकर बैठा। नींद आज खफा थी। बेड से उतरकर काउच पर पड़ी शर्ट पहनी वो कमरे से बाहर निकला। घर मुकम्मल खामोशी और नीम अंधेरे में डूबा था। सीढ़ियाँ उतरता वो सीधा हॉल के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही सर्द हवा का झोंका उसके अंदर तक उतरा था। कदम उठाता वो लॉन में दाखिल हुआ। बस में पड़ी कुर्सियों में से एक पर वो बैठा। ट्राउज़र की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल एक सिगरेट सुलगाए मुंह से लगाया। कुर्सी के साथ मुकम्मल टेक लगा उसने नज़रें सामने उठाई। बैल्कनी खाली थी, मगर कमरे की लाइट जल रही थी, मतलब वो जाग रही थी। धुएं के मरगोले फिजा में उड़ाता वो नज़रें सिर्फ बैल्कनी पर टिकाए हुए था। सोच एक मर्तबा फिर माजी की जानिब निकल चुकी थी। मुझे मिस करोगी? वो क्यों? उसके सवाल पर रायड मुस्कुराया था। कदम से कदम मिलाते वो खाली सड़क पर चल रहे थे। जब मैं स्टेट्स चला जाऊंगा? ये तो तुम्हारे जाने के बाद ही पता चलेगा। लापरवाह सा अंदाज था। रायड की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। कोई मेरा स्टेट्स जाने के बारे में सुनकर रोने के करीब था। वैसे जो भी था, बहुत गलत करने वाला था। आवाज़ में शरारत घुली थी। राइड ने हाथ उठाया, उसकी पोनी टेल हल्की से खींची, जिस पर माँ ने उसे घूर कर देखा। फिर दोनों हाथों से पोनी को ठीक किया। मेन रोड के करीब पहुंचकर वो वहीं से मुड़ गए। फिर पहली सी रफ्तार से घर की जानिब कदम उठाने लगे। तुम बताओ, तुम याद करोगे मुझे? सामने सड़क पर देखते माँ ने सवाल किया। चंद लम्हे की खामोशी छा गई। जो मैं महसूस करने वाला हूँ, उसके सामने याद बहुत छोटा लफ्ज़ है। उसके जवाब पर माँ ने सर उठाया, उसकी जानिब देखा। क्या कहना चाहते हो? वो रुक गया। उसके रुकने पर माँ ने भी कदम रोक लिए। मैं सोचता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखूँगा तो मेरी सुबह कैसे होगी? तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं देखूँगा तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा? तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूँगा तो रात में सो कैसे सकूँगा? तुम्हारी खुशबू महसूस नहीं करूँगा तो सांस ठीक से कैसे लूँगा? तुम्हारी आंखों में नहीं देखूँगा तो मेरी आंखों को सुकून कैसे मिलेगा? उसे यूं देख रहा था जैसे हिफ्ज़ करना चाहता। मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालात में रहती हूँ। मैं तो एक सेकंड के लिए भी तुमसे जुदा नहीं होंगी। जवाब में रायन ने सर हल्का सा जज्बात में हिलाया। और फिर हम रोज़ाना बात क्या करेंगे? वीडियो कॉल पर देखा करेंगे। तुम्हें जब भी यूनिवर्सिटी से फरागत मिले तुम मिलने आ जाया करना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ स्टेट्स चलो? उसकी बात पर माँ को हंसी आई थी। सर नफ़ी में हिला, उसने कदम आगे की जानिब बढ़ाए।
مجھے لندن میں ہی اسکالرشپ مل رہا ہے تو میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کچھ سالوں کی تو بات ہے، ہم پھر سے ایک ساتھ ہوں گے۔ چلتے ہوئے رائٹ کی نظر اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی۔ آدھے چاند کی انگوٹھی پوری شان سے چمک رہی تھی۔ ایک مرتبہ واپس آ گیا تو اسے ویڈنگ رنگ میں بدلنے میں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اس کے پختہ ارادوں پر ماں کھل کر ہنسی تھی۔ میں یہ رنگ تبدیل نہیں کروں گی، ویڈنگ رنگ اس سے بھی شاندار ہوگی۔ اب کی مرتبہ مسکراتی وہ خاموش رہی تھی۔ گھر قریب آ چکے تھے۔ صبح ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ ماں مسکرا کر سر ہلاتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر جانے تک وہ سڑک پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ 2 سگریٹ ختم ہو چکے تھے۔ سنا تھا یہ سب ماضی کی یادوں کو بھلانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن بے سود ہے، یہ یادوں کو دبانے میں کام نہیں آ سکے۔ تیسرا سگریٹ جلانے کا ارادہ ترک کرتا وہ ایک آخری نظر خالی بالکنی پر ڈال کر کرسی چھوڑتا ہال کی جانب بڑھ گیا۔ باب 5۔ رات کسی پہر موسلا دھار بارش کے باعث لندن دھلا دھلا سا لگ رہا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں سڑک پر نظر آنے کو مل رہی تھی۔ روڈ سائڈ کے سب کیفے اور ہوٹل اس وقت بند تھے۔ گیلی سڑک پر بھاری بوٹوں کے قدم پانی کا ہلکا سا شور مچا رہے تھے۔ سیاہ ہوڈ اور رات کی سیاہی نے اسے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ ہوڈ سر پر ہونے کے باعث اس کی آنکھیں ڈھکی تھی، جبکہ باقی کا چہرہ اس نے سیاہ ماسک سے چھپا رکھا تھا۔ ہاتھ ہوڈ کی جیبوں میں اڑ سے وہ ہر فکر سے آزاد سکون سے قدم اٹھاتا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے بنے بینچ کے پاس سے گزرتے اس پر بیٹھی بلی سیاہی میں ڈوبے نفوس کو دیکھتی چھلانگ لگائے بینچ سے اتر کر مخالف سمت بھاگ گئی۔ سر کو جنبش دی، اس نے بھاگتی بلی کو دیکھا، پھر نظریں واپس موڑ لی۔ ٹیلی فون بوتھ کے نزدیک پہنچ کر قدم سست پڑے تھے۔ مکمل رک کر اس نے گردن گھمائی، ایک مرتبہ اپنے پیچھے دیکھا، پھر واپس گردن موڑی، ایک نظر سامنے دوڑائی۔ سڑک خالی تھی۔ چند قدم اٹھاتا وہ ٹیلی فون بوتھ کے بائیں جانب کھڑا ہوا، وزن ایک ٹانگ پر ڈالے وہ بوتھ سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ بوتھ کے اندر جلتی روشنی بھی اس کی سیاہی نہیں مٹا پا رہی تھی۔ 15 منٹ ماں سوائے ایک گاڑی کے گزرنے کی مکمل خاموشی چھائی رہی، جیسے وقت رکا ہو، جیسے پوری دنیا سو رہی ہو۔ پورے 15 منٹ کے بعد ایک طرف سے گیلی سڑک پر پڑتے قدموں کی آواز نے ماحول کا سکوت خراب کیا۔ قدموں کی آواز اس کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہ ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا رہا۔ قدموں کی آواز بالکل اس کے نزدیک پہنچ کر رک گئی۔ سر ابھی بھی نہیں اٹھا تھا۔ میں اب تمہاری بات نہیں مان سکتا، میں تھک چکا ہوں۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، آواز چیختی ہوئی سرگوشی نما تھی۔ سر ابھی بھی نہیں اٹھا تھا۔ بس کر دو، یہ کھیل ختم کر دو، میں مزید یہ نہیں کر سکتا۔ خاموشی۔ اب کی مرتبہ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میری زندگی بے سکون ہو چکی ہے، میں رات میں سو نہیں پاتا، تمہارے اس کھیل نے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ خاموشی۔ یہ خاموشی اب مقابل کو غصہ دلا رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا سوائے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے، سوائے دانت کچکچانے کے۔ تم سن رہے ہو؟ بات پوری ہونے سے پہلے اس نے سامنے والے کے ہاتھ کی حرکت دیکھی۔ بات وہیں ہوا میں معلق رہ گئی، آنکھیں اس کے ہاتھوں پر جم گئی۔ ہاتھ ہوڈی کی جیب سے نکال کر سابقہ سکون کے ساتھ ٹیک لگائے، ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ چھوٹا سا لفافہ اس کے سیاہ گلوز والے ہاتھ میں دیکھتے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ لفافہ تھاما۔ اب کی مرتبہ مقابل سیاہی میں ڈوبے نفوس نے ٹیک چھوڑ ہوڈ کے نیچے سے سامنے والے کے سہمے اور تھکے تاثرات ملاحظہ کیے، پھر اسی خاموشی سے قدم واپسی کے لیے بڑھائے۔ چند قدم ہی اٹھائے تھے جب ہوڈ کے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتا وہ رکا، ایک گہری سانس بھری، پھر پلک جھپکنے سے پہلے اس نے دونوں ہاتھ اوپر کیے، اس ہاتھ کو تھاما اور ایک جسم میں مڑتا اس کا بازو بھی ساتھ مروڑ چکا تھا۔ مقابل کی چیخ بے ساختہ تھی، کڑک کی آواز بتا رہی تھی کہ بازو اپنی جگہ سے ہل چکا تھا، چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمودار تھے۔ انتہائی سکون سے اس کا بازو چھوڑتا وہ ایک قدم پیچھے ہوا، جیسے ابھی کچھ سیکنڈ پہلے اس نے اس کا بازو نہ توڑا ہو بلکہ ہلکی سی تھپکی دی ہو۔ سر نفی میں ہلایا، جیسے اس کی تکلیف پر افسوس کر رہا ہو۔ مقابل اپنا بازو تھامی تکلیف سے ذرا سا جھکا تھا، اینڑیوں پر واپس موڑتا وہ آگے بڑھا۔ ٹوٹے بازو والے نے درد سے آہ بھرتے نظریں اٹھائے اس کی پشت کو دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ میں اس کے ہوڈ پر بنا مراکو کا سرخ جھنڈا اس نے اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ یہی ہوڈ پہن کر اس سے ملنے آتا تھا۔ وہ اس ہوڈ کو جانتا تھا، وہ اس کے مالک کو بھی جانتا تھا۔
मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम मुझसे मज़ीद छिप नहीं सकते। वो हल्की आवाज़ में चीखा था, आवाज़ में भी तकलीफ नुमाया थे। कदम उठाने वाला रुका नहीं, मुड़ा भी नहीं, बल्कि एक हाथ जेब से निकाले दरमियानी उंगली उसकी जानिब लहराई थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। टूटा बाजू थामे वो उसी खाली सड़क पर स्याही के साथ जज्ब होते देखे गया। फिर वापस मुड़ा, चंद कदम आगे बढ़ाए थे जब मोबाइल के बीप पर उसने मोबाइल जेब से निकाले देखा। नंबर अनजान था। स्क्रीन छूकर मैसेज खोला। मैं वाज़े हुआ तो तुम्हें कोई नहीं छुपा सकेगा। मुख्तसर सा मैसेज था। मोबाइल पर पकड़ सख्त हुई। वो बुरी तरह से उस दलदल में फंस चुका था। कॉल के ऑप्शन को दबाया उसने, फ़ोन कान से लगाया, मगर नंबर बंद था। अब वो जानता था ये नंबर कभी नहीं खुलने वाला। हमेशा ऐसे ही हुआ था। आंखें बंद किए उसने फ्रस्ट्रेशन के बाइस चीखने से खुद को बाज रखा। टूटे बाजों की तकलीफ से ये दलदल कई ज़्यादा तकलीफदा थी। मोबाइल वापस जेब में डालता वो बाजू थामे गीली सड़क पर कदम उठाता उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से वो टेलीफोन बूथ पर आया था। बैग कंधे पर ठीक करती वो गेट अपने पीछे बंद करके बाहर निकलती सड़क के किनारे हमवार कदम उठाने लगी। रात को बारिश के बाईस सर्दी में इजाफा हुआ था। हवा भी मज़ीद सर्द हो चुकी थी। क्रीम कलर का ब्लेज़र पहने उसने अपने सीधे बाल हिस्ब आदत टेल पोनी में बांध रखे थे। हवा के बायस उसकी पोनी हिलकोरे खा रही थी। एक गहरी सांस भरकर माँ ने सर्द हवा को अपने अंदर उतारा। चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। जो भी था, लंदन की सर्दी उसकी पसंदीदा थी। नजरें इर्द गिर्द घुमाती वो सुबह सवेरे लोगों को कैफ़े आते जाते देख रही। कुछ लोग अपनी जॉब पर, तो कुछ उसकी तरह कॉलेज की जानिब रवां दवां थे। नूरे की क्लास कुछ लेट थी, जिसके बायस वो अभी तक पड़ी सो रही थी। वैसे भी वो आधे घंटे का रास्ता 10-15 मिनट में तय करने का हुनर रखती थी। पार्क लेन की सड़क पर उतरकर एक कैफ़े को देखकर उसके कदम सुस्त पड़े। कॉफ़ी की खुशबू हर सू फैली थी। कॉफ़ी का मूड बन रहा था। बिला आखिर अपने दिल की बात मानती वो बैग कंधे से उतार कर हाथ में पकड़ती कैफ़े की जानिब मुड़ी ही थी जब एक बाइक के तेज़ी से पास से गुजरने के बायस गीली सड़क से गंदे छींटे उड़ते उसके ब्लेज़र कमर और कंधों से गंदा कर चुके थे। कैफ़े की जानिब बढ़ता उसका कदम हवा में ही मौलिक रह गया। शौक के बायस पूरा मुंह खुला था। गर्दन को पूरा मोड़कर उसने अपने ब्लेज़र का जायज़ा लिया जो अच्छा खासा दागदार हो चुका था। एक रंग भी इतना हल्का था। बारिश के दिन ही उसे ब्लेज़र पहनने की सूझी थी। तिनक कर पैर सड़क पर पटका। वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गंदे ब्लेज़र के साथ वो कॉलेज नहीं जा सकती थी। अभी वो उसी सोच में मुब्तला थी जब बाइक उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ। माँ ने गर्दन घुमाए देखा। हेलमेट उतार कर रायत की नज़र उसके ब्लेज़र पर पड़ी। दांत पर दांत जमाए उसने अपनी उमड़ने वाली मुस्कुराहट को दबाया था। माँ मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ी। चेहरे पर संजीदा तासुरात थे। अभी तुम गुजरे थे ना यहाँ से? जवाबन रायद ने कंधे उचकाए। माई बैड। लापरवाह सा अंदाज। आंखें खोल कर इसे चलाया करो, सड़क तुम्हारी जागीर नहीं है। उसका लहजा हल्का सा सख्ती ले हुए था। तुम साइड पर होकर चला करो। अपनी गलती नहीं मानी थी। जिस जगह मैं खड़ी हूँ उसको फुटपाथ कहते हैं मिस्टर सुल्तान। अब मैं फुटपाथ के अलावा कहीं और नहीं चल सकती। कीचड़ पहले से सड़क पर था। मेरा कोई कसूर नहीं। तुम आराम से भी तो चला सकते थे, या फिर वो रुकी थी। तुमने जानबूझकर फुटपाथ के साथ से ये बाइक गुजारी है ना, ताकि मेरे कपड़े गंदे हो जाएं? आंखें छोटी किया वो रायत के गैर संजीदा अंदाज को देख रही थी, जो हंसी दबाए हुए था। जो मर्जी समझो। हेलमेट वापस पहनकर उसने बाइक वापस स्टार्ट करनी चाहिए। माँ ने एक लम्हा उसे देखा, फिर दायां पाँव उठाए पूरी कुव्वत से उसके सफ़ेद जॉर्डन पर दे मारी। सफ़ेद चमकते शूज़ पर कीचड़ का बदनुमा दाग देखते रायत की आंखें वाह हुई थी। हेलमेट वापस उतारी उसने पेशानी पर बल डाले माँ को देखा। ये क्या बदतमीज़ी है? लहजा सख्त था। उसके जवाब में माँ हल्का सा पीछे मुड़ी, अपना गंदा ब्लेज़र उसके सामने किया। जो बदतमीज़ी तुमने की थी। चुपती हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब देती वो बिना रुके घर की जानिब चल पड़ी। पीछे खड़े रायद ने एक नज़र उसके कीचड़ के छींटों से भरे ब्लेज़र को देखा, फिर सर झुकाए अपना दागदार शूज़। चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, जिस पर सर नफ़ी में हिला था। वो भी हेलमेट वापस रखता घर की जानिब बाइक पर आ गया। आज फिर से महफिल जमी थी। फिर से 9 लोग आमने सामने बैठे थे। फिर से फ़िज़ा में तनाव सा छाया था, लेकिन पिछली मर्तबा की निस्बत तनाव कुछ कम था।
माही दौरा अपने लैपटॉप में सर्दी खामोशी से बैठी थी, जबकि डैन और जकी आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर आज राइट भी ग्रुप स्टडी में हिस्सा ले रहा था, जो उस वक्त रिया, फ्लोरा और आमना को लैपटॉप से कुछ समझाने की किसी हद तक कामयाब कोशिश कर रहा था, जिसमें आमना उसकी मदद कर रही थी। बाकी के लोग भी अपनी अपनी जगह खामोशी से पढ़ाई में मसरूफ़ थे। जो भी था, वो सब पढ़ाई को संजीदगी से लिए हुए थे। एग्ज़ाम्स में महज 2-4 माह रह चुके थे। ये पॉइंट मुझे भी काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, आमना लैपटॉप की स्क्रीन को देखते बोली। माही दौरा, हमारी मदद कर सकती हो उस टॉपिक में? फ्लोरा की आवाज़ पर माँ ने सर उठाया उसे देखा, फिर सरस बात में हिलाए अपनी जगह से उठी। दरमियान में बैठे राइड ने एक नज़र माँ को देखा, फिर कुर्सी ज़रा सी खिसकाता खड़ा हुआ। माँ ने एक नज़र खाली कुर्सी को देखा, फिर खामोशी से राइड की छोड़ी कुर्सी संभाली। अपने पीछे वो राइड की मौजूदगी महसूस कर सकती थी, जो कुर्सी पर हाथ रखे ज़रा सा आगे की जानिब झुका था। गहरी सांस खींचती वो लैपटॉप में खुले टॉपिक की जानिब मतवज्जा हुई। चंद लम्हों के बाद गैर महसूस अंदाज में बाकी सब भी उनके साथ कुर्सियां जोड़े अब माँ को सुन रहे थे, जो पूरी तवज्जो से उन्हें समझाने में मसरूफ़ थी। दरमियान में वो कभी रुक कर उनसे सवाल भी पूछ लेती, आया कि वो कुछ समझ भी रहे थे या नहीं। मेरे ख्याल में बस इतना काफ़ी है, इसके बावजूद कुछ मिस हो गया तो डिस्कस कर सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन आराम से बंद की उसने सबकी जानिब देखा। सब ने सर इस बात में हिलाए। जाहिद अपनी जगह से हिलता बिल्कुल सामने खाली कुर्सी पर विराजमान हुआ। माँ ने बायां हाथ उठाए, नरमी से लैपटॉप उसकी जानिब घसीट दिया। ये हैरी विंस्टन है। फ्लोरा की पुरजोश आवाज़ पर माँ ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जो उसका बायां हाथ थामे गौर से उसकी रिंग देख रही थी। बाकी सब भी उसकी जानिब मतवज्जा हुए थे। मालूम नहीं, हल्की सी आवाज़ में जवाब देते माँ ने हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन फ्लोरा ने हाथ मज़ीद अपनी तरफ खिसकाया था। अब वो आधे चाँद पर उंगली फेर रही थी। ये हैरी विंस्टन है, मुझे यकीन है। मेरी बहन ने अपनी वेडिंग रिंग के लिए ये डिज़ाइन ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। क्या उसे मिली? लियान ने सवाल किया था। माँ ने पहलू बदलते सामने बैठे रायत को देखा, जिसकी नज़र फ्लोरा के हाथ में थामे उसके हाथ पर थी। चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। नहीं, ये लिमिटेड आर्टिकल्स थे। पूरे लंदन में सिर्फ 2 या 3, जो रिलीज़ होने से पहले ही सेल हो गए थे। फ्लोरा ने कंधे उचकाए उसे बताया, फिर माँ की जानिब देखा। चेहरे पर हैरत के तासुरात नमूदार हुए थे। तुम एंगेज्ड हो माही दौरा? सवाल पर माँ की सांस एक लम्हे को थमी थी। हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाते वापस गोद में रखा। पूरे टेबल पर खामोशी छाई थी, जैसे सब उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हो। हम यहाँ पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं बैठे, मुख्तसर सा जवाब दिए वो अपनी चीज़ें समेटने लगी। हाँ, मैं जवाब नहीं दिया तो इनकार भी नहीं किया था। हैरी विंस्टन की कॉपी भी हो सकती है। लिमिटेड डिज़ाइन हमेशा लोकल ब्रांड्स कॉपी कर लेते हैं। इज़ाबेला की बात पर माँ बिना कोई जवाब दिए अपना लैपटॉप शट डाउन करने लगी। कॉपी और ओरिजिनल में बहुत फ़र्क होता है। यह असल हैरी विंस्टन एडिशन है। मैंने खुद आउटलेट पर देखा था। माही दौरा की रिंग ओरिजिनल हैरी विंस्टन है। फ्लोरा की बात सुनती माँ के साथ बैठी लियाना उसकी जानिब बढ़ी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी अमीर होगा, जिसने हैरी विंस्टन लिमिटेड एडिशन रिंग तुम्हें गिफ्ट की। उसकी आवाज़ में सताइश थी। माँ ने दांत पर दांत जमाए, कुछ भी बोलने से खुद को बाज रखा। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर एक नई गर्लफ्रेंड बना ली। अफसोस का मकाम है। डैन के शरीर लहजे ने माहौल में छाई संजीदगी को मिटाया था, सिवाय माँ और रायत के। सबकी दबी दबी हंसी गूंजी थी। जवाबन लियाना ने रजिस्टर उठाए डैन के सर पर वार किया था। चलते हैं, क्लास का टाइम भी होने वाला है। रिया के कहने पर माँ अपना बैग थामती अपनी जगह से खड़ी हुई, नज़र सामने टेक लगाए बैठे राइट पर पड़ी। चंद सेकंड के लिए नज़रें चार हुई थी, फिर बहुत सुकून से राइट टेक छोड़ता आगे हुआ। कोनिया टेबल की सतह पर जमाई। तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है। यह सिर्फ एक आर्टिकल था जो कि कस्टमाइज था। माँ की आंखें वाह हुई थी, जबकि राइट सुकून से फ्लोरा की जानिब देख रहा था। तुम्हें कैसे पता? इज़ाबेला ने नासमझी से पूछा। राइट ने एक नज़र हैरत में डूबी माँ को देखा, फिर इज़ाबेला को देखते कंधे उचकाए। आई हैव माई सोर्सेज, जवाब देता वो बिना किसी का इंतज़ार किए डैन की जैकेट का कॉलर थाम कर उसे अपने साथ घसीटता कैफ़े से बाहर निकलता चला गया। माँ ने सर नफ़े में हिलाए, गहरी सांस खारिज की थी, फिर बैग कंधे पर लटकाए अपने दोस्तों के साथ क्लास की जानिब बढ़ गई।
गाड़ी सड़क के किनारे लगाए, वो दरवाज़ा खोले बाहर निकला, जेब से मोबाइल निकाल कर मखसूस नंबर मिलाया। बेल जारी थी मगर मुकाबिल नफूस फ़ोन ही उठा रहा था। गाड़ी के बोनट से टेक लगाए, वो वापस फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगा। सब आंखें इर्द गिर्द का बारीकी से जायज़ा ले रही थी। बुलंदो बाला इंजन की आवाज़ पर गर्दन ज़रा सी मोड़ कर आवाज़ की सिम देखा। एक बाइक पार्क लेन की तरफ से तेज़ी से उसकी जानिब आई थी। उसकी गाड़ी के करीब से आंधी तूफान के मानिंद गुजर कर आगे निकल गई। सड़क के आखिर से बाइक मुड़कर वापस उसकी जानिब आई। गाड़ी से कुछ दूर बाइक को ब्रेक लगी। रुमान ने माथे पर सिलवटे डाले, बाइक और उस पर सवार नाजुक से नफूस को देखा। बाइक पर बैठे ही उसने हेलमेट उतारकर बालों को झटका दिए माथे से पीछे हटाए थे। एक लम्हे के लिए रुमान की आंखें वाह हुई थी। वो लड़की थी, मतलब बाइक पर सवार वो 18-19 साल लड़की थी। वो बाइक की उस स्पीड के साथ एक लड़की की तवक्को नहीं कर सकता था। गाड़ी से टेक छोड़ता वो बाइक की जानिब बढ़ा। चंद कदम का फासला रखता वो रुक गया। ये रेजिडेंशियल एरिया है मिस, इस स्पीड के साथ आप कौन से खलाई सफ़र पर निकलने जा रही हैं? आवाज़ पर नूरी ने सर उठाए सामने खड़े लंबे चौड़े हाथ पैंट की जेबों में घुसाए रुमान को देखा। माथे पर बल नमूदार हुए थे। आप ट्रैफिक ऑफिसर हैं? नहीं। तो फिर इजी रहें। बाइक से उतरकर हेलमेट हैंडल से लगाया और बैग कंधे पर डाला। रुमान ने आंखें छोटी की उसको देखा। चेहरे पर दिलचस्पी के तासरात फैले थे। फ्रंट पॉकेट से अपनी आईडी निकाले उसके सामने लहराई। चीफ सुपरिंटेंडेंट तारुफ करवाया था। नूरे ने एक नज़र उसकी आईडी को देखा, फिर उसकी जानिब। आप अब भी ट्रैफिक ऑफिसर नहीं हैं सर, संजीदगी से जवाब देती वो गेट खोलने मुड़ गई। लेकिन मैं इन शहरियों का मुहाफिज हूँ जिन्हें आप अपनी बाइक के नीचे कुचलने का इरादा रखती हैं। वापस मुड़ते नूरे ने बाइक का हैंडल संभाल कर गेट की जानिब मोड़ा। शहरी महफूज हैं ऑफिसर, आप अपनी हिफाजत करें, आंखें घुमाकर जवाब देती वो बाइक गेट से अंदर ले जाकर खटाक से गेट बंद कर गई। रुमान ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा, फिर लब दबाए उमड़ने वाली मुस्कुराहट को। सर नफ़ी में हिला था। अजीब लड़की। फ़ोन जेब से निकाल कर देखने पर कोई कॉल या मैसेज न देखकर रुमान ने गहरी सांस भरी, फिर कदम गेट की जानिब उठाए। हाथ रखने पर गेट खुला मिला। ज़रा सा गेट वाक किए वो अंदर दाखिल हुआ। चंद सेकंड रुक कर वो हमवार कदम उठाता अंदरूनी दरवाजे के साथ खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाए बेल बजाई। चंद लम्हे इंतज़ार के बाद दरवाजे के उस पार आहट सुनाई दी। फिर दरवाज़ा एकदम वाह हुआ। सामने खड़ी नूरे को देखते रुमान ने अचानक से उमड़ने वाली हंसी बमुश्किल दबाई थी। उसके बरक्स नूरे ने आंखें छोटी किए उसे देखा। सीरियसली ऑफिसर, डोंट टेल मी कि आप मेरी शिकायत करने मेरे घर तक पहुंचाएं। बाजू सीने पर बांधे वो संजीदगी से बोली। शिकायत लगाने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता क्योंकि आप असल लेने वाली नहीं लगती। बिल्कुल सही पहचाना। थोड़ी ऊपर नीचे उठी थी। रुमान ने सर नफ़ी में हिलाया। कौन है नूरे? पीछे से आती आवाज़ पर दोनों की नज़र दरवाजे की जानिब बढ़ती माहे दौरान पर पड़ी। ऑफिसर? वो रुकी थी। रुख वापस रुमान की जानिब मोड़ा। क्या नाम था आपका? नूरे के सवाल पर रुमान ने ज़रा सी हैरत से उसको देखा। अभी चंद मिनट पहले तो उसका आईडी देखा था उसने। रुमान, आप कब आए? माँ उसे देखते फ़ौरन आगे बढ़ी। आवाज़ में हैरत थी। नूरे ने नासमझी से उसे देखा। फ़ोन को हमा वक्त साइलेंट पर रखने की आदत से परहेज़ करो माहे दौरा। उसकी हल्की सी तंबी पर माँ खिसियानी से मुस्कुराई थी। तुम इन्हें जानती हो? नूरे के सवाल पर माँ ने उसे देखा, जो चेहरे पर नासमझ तासुरात लिए खड़ी थी। ये रुमान है, हाथ के दोस्त, मैंने बताया भी था तुम्हें। ओह, तो आप रुमान हैं, ऑफिसर रुमान? रुमान ने सर जज्बात में हिलाया। रुमान ये नूरे है, मेरी छोटी बहन। माँ ने तारुफ करवाया था। नूरे, वेल नूरे, नाइस टू मीट यू। रुमान ने उसे देखते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। विश आई कुड से द सेम। जवाब देती वो बिना किसी को देखे वहीं से मुड़ गई। माँ ने आंखें खोले उसे देखा, फिर गला साफ के रुमान को देखा। माजरत, वो बस ऐसी ही है। रुमान सर नफ़ी में हिलाए हल्का सा मुस्कुरा दिया। इट्स ओके, आप प्लीज़ अंदर आएँ। वो दरवाजे से हटकर खड़ी हुई। रुमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर हिलाता घर में दाखिल हो गया। तुम्हारी मदर नज़र नहीं आ रही। कॉफ़ी का कप टेबल से उठाता वो सामने सोफे पर बैठी माँ को देखता बोला। नूरे उसके साथ बैठी टांग पर टांग चढ़ाए फ़ोन पर मसरूफ़ थी।
وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب رومان کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر واپس آتی ماں کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اب اپنی بہن کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماما اس وقت عموماً انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہیں، ان کے فائنل پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کے لیے انہیں مختلف ہوٹل اور کیفے میں اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنی ہوتی ہے۔ تفصیلی جواب پر رومان نے سر ہلایا تھا۔ میری آج ہی واپسی ہوئی ہے شفل سے، آج آف تھا میرا، اس لیے میں نے سوچا ہمیں اس بیکری کو ڈھونڈنے نکلنا چاہیے جس کے لیے میں تمہیں پک کرنے آیا تھا۔ رومان کی بات پر نورے فون بند کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں ریڈی ہوں، ماں نے جواب دیا تھا۔ میں بھی چلوں گی، نورے نے فوراً حصہ ملا تھا۔ ماں اور رومان نے ایک ساتھ اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ واٹ، میں بھی چاہتی ہوں ہاتھ جلد از جلد واپس آ جائے، اس لیے میں بھی چلوں گی۔ ان دونوں سے پہلے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ماں نے سر نفی میں ہلایا۔ آل رائٹ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ کپ واپس ٹیبل پر رکھ کر وہ کھڑا ہوتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مے فیئر اور پارک لین کے درمیان، یہی بتایا تھا نہاد نے؟ نظر روڈ پر رکھے رومان نے ساتھ بیٹھی ماں سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ بیکری روڈ سائڈ پر نہیں ہے۔ پارک لین اور مے فیئر میں ڈھیروں بیکریاں ہیں، ایسے میں وہ بیکری کیسے ڈھونڈ پائیں گے؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھی نورے آگے ہو کر بولی۔ ماں اپنی جگہ پر مڑ کر بیٹھی۔ اب رخ رومان اور نورے کی جانب تھا۔ کوشش کرتے ہیں نورے، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ اگر بیکری روڈ سائڈ پر نہیں ہے تو تلاش اتنی مشکل نہیں، ہمیں صرف اسٹریٹ شاپس میں اس بیکری کو ڈھونڈنا ہے۔ رومان کی بات پر ان دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑا کرتا وہ باہر نکلا۔ ماں اور نورے نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ کچھ قدم پر ایک بیکری تھی۔ رومان نے ایک نظر ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ماں نے نورے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ ریلیکس ماں، اس کے ہاتھ کو تھپکی دیتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بیکری میں داخل ہوئے، وہ رومان کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی۔ جی سر، کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کاؤنٹر پر موجود لڑکا رومان کو دیکھتے بولا تھا۔ کتنے عرصے سے ہو یہاں تم؟ رومان کے سوال پر لڑکے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دراصل ہم ایک چھوٹا سا سروے کر رہے ہیں، لندن کے مختلف بیکنگ شاپس میں جا کر ان کا کام، تجربہ وغیرہ جیسی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، ذرا سی تعاون کی ضرورت ہے۔ رومان کی کہانی پر نورے نے ناک چڑھائے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ آفیسر تھا، اپنی آئی ڈی دکھا کر بھی کام نکلوا سکتا تھا۔ جی ضرور سر، میں یہاں 1 سال سے ہوں، لڑکے نے سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کوئی ایسا ورکر ہے جو پرانا ہو، 3 یا 4 سال سے؟ رومان کے سوال پر لڑکے نے سر نفی میں ہلایا۔ اس بیکری کو کھلے محض 1 سال ہی ہوا ہے ابھی سر۔ ایک ساتھ تینوں کے کندھے ڈھلکے تھے۔ لڑکے سے ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کرتا رومان ان دونوں کے ساتھ بیکری سے باہر نکلا۔ ماں کے چہرے پر مایوس کن تاثرات کی جھلک سی نمودار ہوئی تھی۔ ابھی شروعات ہے ماہی دورہ، ابھی سے مایوس نہیں ہونا۔ رومان نے آگے کھڑے ہوئے رخ موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں مایوس نہیں ہوں۔ کیا آپ سیدھا سیدھا نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کے پاس اتھارٹی ہے آخر۔ نورے کی دھن الگ تھی۔ کچھ چیزوں کی اجازت قانون نہیں دیتا لٹل مس، جواب دیتا وہ رخ موڑے، قدم اٹھاتا اگلی بیکری کی جانب بڑھا تھا۔ نورے نے آنکھیں گھمائے ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب وہ دونوں رومان کے قدم پر قدم رکھتے ایک سے دوسری بیکری میں خوار ہو رہی تھی۔ لیونگ روم میں ہر سو سگریٹ کے دھوؤں کے مرغولے چھائے تھے۔ دیوار پر بڑی سی اسکرین جل رہی تھی جس پر کسی ویڈیو گیم کو روکا گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے صوفے کے پشت پر سر رکھے وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ کا کش بھر رہا تھا۔ ٹانگیں بوٹوں سمیت سینٹرل ٹیبل پر رکھی تھی، بال لاپرواہی سے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ بند آنکھوں کے باوجود معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سوچوں کے محور میں کہیں دور کھو گیا ہو۔ رائل، نرم سی آواز پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ سگریٹ والا ہاتھ نامحسوس انداز میں نیچے گرا لیا تھا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں رائل۔ وہ اس کے بائک پر ایک جانب رخ کیے بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ کچھ لمحے رکی، پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ کچھ نہیں۔ رائل نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے گود میں رکھے ہیلمٹ کے گرد بازو باندھے چند مزید لمحے اسے دیکھا۔ تم وہاں جا کر بدل تو نہیں جاؤ گے؟ لہجے میں اندیشہ تھا، کچھ کھو جانے کا ڈر تھا۔ رائل نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلائے ہنس دیا۔ ایسا کیوں لگا تمہیں یار؟ معلوم نہیں، بس ایسے ہی خیال آ گیا۔ تم وہاں نئے لوگوں سے ملو گے، نئے دوست بناؤ گے، ایسے میں اگر تم پرانے رشتے بھول گئے تو؟
बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन राय जानता था ये मुस्कुराहट फीकी थी। ये मुस्कुराहट उसकी माहे दौरा की नहीं थी। ये मुस्कुराहट उसकी भूरी आंखों में चमक नहीं ला रही थी। वो 2 कदम उठाकर उसके ऐन सामने खड़ा हुआ। माह ने गर्दन उठाया, वो उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ माहे दौरा, कि जिस दिन मैं अपने वादे से फिर गया, जिस दिन तुमसे बेवफाई कर गया, उसी लम्हे मुझे ख़त्म कर देना। मैं तुम पर अपना खून माफ़ करता। उसका लहजा पुख्ता था, वो सच बोल रहा था। माँ ने हैरत से उसे देखा, फिर सरनफी में हिलाती हंस दी। और मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी? तुम हक पर होगी। तुम्हारे साथ बेवफाई की सज़ा इससे कम नहीं। मुस्कुराहट ढल चुकी थी। माँ ने संजीदगी से उसे देखा। राहिद उसके देखने पर हल्का सा हंस दिया। एक बात याद रख लो माहे दौरा, कि जब तक राहिद सुल्तान जिंदा है, उसका दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन हर एक लड़की की तरह मैं भी इनसिक्योर हो रही थी। इस सब पर हमारा इख्तियार नहीं। कंधे उचकाए थे। समझ सकता हूँ, और मैं हर मर्तबा तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ से बेजार नहीं होऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो राहिद, एक बहुत अच्छे पार्टनर। राहिद सर खम करता मुस्कुरा दिया। जानता हूँ। हेलमेट उसकी गोद से उठाकर उसके सर पर रखा। यू आर फुल ऑफ योर सेल्फ। नो, आई एम फुल ऑफ योर सेल्फ। मुस्कुरा कर कहता वो बाइक पर सवार। बाखुदा, मेरे फेफड़े 30% तो पक्का आज ख़त्म हो गए होंगे। खांसने की आवाज़ पर राहिद ने आंखें वाकी इर्द गिर्द का जायजा लिया। सिगरेट जलकर छोटे टुकड़े की सूरत उसकी उंगलियों में फंसा था। सन्नफी में हिलाए टेक छोड़कर राहिद ने सिगरेट ऐश ट्रे में फेंक दिया। नजरें घुमाकर खिड़की का पर्दा पीछे करके खिड़की खोलते डैन को देखा। ओ भाई, मेरा इंटरनल सिस्टम बहुत नाजुक है। मेरी मौजूदगी में ये धुएं मत उड़ाया कर। टेबल से पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाए आधी खाली करने के बाद वो बोला, तुम कब आए? सवाल क्या था? पिछले 15 मिनट से फ्लैट की खिड़कियां और दरवाज़ा खोल रहा हूँ। क्या हम दोनों मज़ीद कुछ साल जिंदा रह लें? रिमोट थाम कर वो स्क्रीन के साथ पड़े कुशन पर ढेर हो गया। मैं कुछ देर अकेले रहने आया था। तुमने अपनी चोट ज़रूर शामिल करनी होती हर जगह। उसके बेजार लहजे पर डैन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हारे आबा व अजदाद का फ्लैट नहीं है। मेरे बाप की हलाल कमाई भी शामिल है इसमें। यह अलग बात है, उनको मालूम नहीं। अपनी बात पर वो खुद ही खिसियानी हंसी हंसा था। राहिद ने संजीदगी से उसे देखा। मैं आज ही पासपोर्ट तब्दील कर दूंगा। फ्लैट के कागजात मेरे पास है सुल्तान साहब, मज़े से जवाब देता वो मुड़कर वीडियो गेम पर मसरूफ़ हो गया। राहिद ने एक नज़र उसके सर की पुश्त को देखा, फिर सन्नाफी में हिलाता अपनी जगह से खड़ा हुआ। कदम ओपन किचन की जानिब बढ़ाए थे। सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज़। थैंक यू सुल्तान। नज़रें स्क्रीन पर जमाई हुक्म सादिर किया था। राहिद ने पास पड़े सोफे से कुशन उठाए, पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। सर पकड़े डैन ने आंखें वाक़ई उसे देखा। जूस भी साथ में ले आना, अब सर चकरा रहा है मेरा। डैन की ज़ात पर किसी चीज़ का असर होना नामुमकिन था। सेंट्रल लंदन के पॉश बिल्डिंग में ये फ्लैट राहिद और डैन की मिल्कियत थी, जो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन के बाद ख़रीदा था, जिसके बारे में उनके घर वाले लाइल्म थे। ये जगह उनकी फरार थी। ये जगह उन दोनों की दोस्ती की गवाही थी। ये जगह महज डैन और उसके सुल्तान की थी। हाँ जी, तो आज का एपिसोड हम बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।